Guys, welcome to the first episode of the Podstars, where we have the biggest headphones, we have the biggest mics, but we have the smallest penises. Your hosts today are Anmol Raina 13 from Instagram and also from real life. We have AMK, who's a musician, Dun, 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 dun. and we have Keshav, who's a berozgar. Chapri. Please hire me. Chappal Chor. Please hire me. Chappal Chor. What are we talking about today? We are talking about... I didn't come for Alan Walker. We're talking about Alan Walker. We're talking about an experience that Keshav and I had with a very, very big DJ, Alan Walker. Alan Walker. So Keshav, we went for Alan Walker, where we met a lot of stars. There was a high... If you don't know Alan Walker is the dude who made Faded. Yes. That's not Faded. Oh shit. That's not Faded. It's I'm Faded. Something all idioms. You are know there. Faded. Like it was very famous. it was very, very... He has 200 billion streams. And every boy who thinks he's jacked, जिस भी लड़के को लगता है कि उसके हाथ पर थोड़ा मांस है, उसने उस पे एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई है. अगर तूने डांस वीडियो नहीं है. Transformation video. अगर तूने उस पे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो नहीं बनाई, then you're not jacked, pussy. You're not jacked. Okay. Anyway, so Alan Walker, how this came to be was that I was called by my manager from this agency called Monkey. Monkey is my agency. Shout out to Monkey. Shout out to Beer Biceps. Shout out to Viraj. Shout out to Ayush. And shout out to Akshat. Shout out to Alan Walker. Shout out to biggest shout out to Alan Walker. So Akshat called me one day and he was like कि Alan Walker हमारा टैलेंट तो नहीं है, बट एलन वॉकर हमारा एक क्लाइंट है जो आ रहा है दिल्ली अपना नाच गाना करने, और वो चाहता है कि वो नहीं चाहता, इन्फ्लुएंसर्स चाहते हैं उसके साथ रील बनाना, और हम चाहते हैं तू एक इन्फ्लुएंसर है तो तू भी उसके साथ रील बनाएगा. एंड आई सेड आई हैव ओनली हर्ड वन एलन वॉकर सॉन्ग बट आई विल डू इट. कॉज why did I say I will do it? Keshav, you might have a little clue of why I said I want to do it. India's biggest celebrity. Biggest magician. Fard magician. Can't fard magician. RJ Abhinav. Shout out to RJ Abhinav. So RJ Abhinav was going to be there, and I was told RJ Abhinav was going to be there by Akshat, and I was like कि अगर RJ Abhinav आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ. मैंने फटाफट केशव को फ़ोन मिलाया और AMK को फ़ोन मिलाया. पहले मैंने मिलाया फ़ोन AMK को because I was like AMK म्यूजिशियन है. हाँ तो मैंने मना कर दिया कि अबे तेरे को टे करना था. म्यूजिशियन है. स्टोरी पूछ रहा है कि तूने मना क्यों करा. That's the cue. AMK क्योंकि म्यूजिशियन है. हाँ टा Exactly. So AMK is a musician, so we thought कि we will take AMK and I will go in the morning where we'd have the meet and greet with Alan Walker, and then there was a concert in the evening, and I thought Keshav को मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा क्योंकि केशव इज़ वेरी पैशनेट कि वो कंधों पे चढ़ के वो नाचना बहुत पसंद करता है. हाँ that's true. I've seen him do that at weddings also. Weddings is his speciality. केशव तेरी फेवरेट मिठाई कौन सी है? काजू कटली. कटली. तेरे खाने के बाद तो खाना कट ही लेता है भाई. काजू खा के दुल्हन के साथ कट लेता है. That was a weak one, but okay. अपना पहला एपिसोड ही है तो अभी हम सीख रहे हैं. But anyway, ओए कोई नहीं. तो guys, whoever is not watching this on video, वो गलती से लाइट ऑफ हो गई थी. हम कम बिजली वाले जगह पे ये सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं. वही अब बहुत स्टूडियो हमारा बहुत थोड़ी सस्ती स्पेस में है. बट एनीवे, फिर उसके बाद मैंने केशव AMK को कॉल किया. केशव AMK का कुत्ता बीमार था तो AMK कुड नॉट कम, एंड देन केशव और मैंने अपने बस्ते पैक करे, और एक दिन पहले मैं गया था दोस्त कास्ट पे. दोस्त कास्ट का एपिसोड कल रिलीज होने वाला है फ्रॉम व्हेन वी आर फिल्मिंग दिस. गाइज, इफ यू हैवंट सीन माय एपिसोड विद विनम्र, गो वॉच इट. शाउट आउट टू विनम्र. ही गेव अस अ list of all the components we needed to start this podcast. He's a big reason we could start this podcast this quickly. So big shout out to Dostcast, big shout out to Vinamra. They're the same person. So I called Keshav. Keshav packed his bags and he was at my place a day before Alan Walker. We slept over. We woke up in the morning and we started off with a very, very, very healthy breakfast. Pizzas from Tossin. Shout out to Tossin. How much do you love Tossin, AMK? I love Tossin, but California burrito more. He moved to the colony where Tossin's owner lives. Did you try to seduce him there? But Tossin's owner, I don't know if that's a Tossin owner. It could be a delivery dude who's just A very, delivery very, dude? very, very passionate about Tossin's, because we think Passion doesn't mean that he can afford an Audi A6.
Of course it could. हाँ, What if he's delivering like 10 Dawson pizzas every day and then he has like he gets fucking commission. 200 rupees from commission. Lease ले ली भाई. He wants to follow his dreams. We're just thinking he's the owner. He could Lease be like ले ली? गाड़ी lease पे ले ली. He's not a rapper, he's a delivery guy. Why does he need to fake flex? Maybe he wants to become a rapper. Maybe he delivers in the Audi. Oh, I thought you said he delivers in the hood. गुड़गांव में everything is the hood. Hood. हाँ. उसके बाद हम लोगों ने बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट पेला और फिर हमारा केशव रील आइडिया क्या था यार? What was our fucking real idea? हमारा एग्जैक्टली कुछ नहीं था. हम बस कह रहे थे कि अनमोल अपना देसी रैपर वाला लेके जाएगा, उसको रैप करेगा और एलन वॉकर उसको बाहर निकाल देगा. इतना हमने बेसिक सोचे गए थे कि वहाँ पर उसके पास बॉडीगार्ड अगर होंगे तो देखते हैं क्या करेंगे उसके साथ. बट हुआ क्या कि आरजे अभिनव बहुत पहले से प्लान करके आया हुआ था. तो आरजे अभिनव ने अक्षत को भेजा था अपना रील आइडिया कि भाई लोगों मेरा रील आइडिया ये है और मैं ये करने वाला हूँ. और मैंने और केशव ने सुना उसका रील आइडिया क्या था और फिर हमारे खुल गए पंखे क्योंकि हमने बोला कि हमने तो बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं किया है. आरजे अभिनव क्लियरली इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड. फिर उसके बाद हमने थोड़ा मतलब वी फेक प्रिपेयर्ड. वी लाइक प्रिटेंडेड दैट वी प्रिपेयर्ड वेल. वी सेड लाइक इन आवर हेड्स वी लाइक कि ये करेंगे. बट वो एक्चुअली में हमने बेसिकली कुछ भी नहीं किया. बस मैंने 2 स्लाइस पिज़्ज़ा की खाई. मैं काफ़ी हंगओवर था क्योंकि मैंने पिछले दिन दोस्त कास्ट पे अच्छे से जिन की बोतल खींची थी. और फिर उसके बाद हम पहुंचे ली मेरिडियन गुड़गांव. ब्रो. सो अपेरेंटली इट्स नॉट ली मेरिडियन, लाइक Le Meridian. ले मेरिडियन, That's राइट? the thing on top of the E. ले ली whatever. ले ली. ले ली whatever. केशव द प्लेयर. ले ली मेरिडियन गुड़गांव पहुंचे. केशव इज की ले ली. Whatever. yeah, that's what Keshav is a virgin. That's why he talks like this. ले ली whatever. But anyway, so we fucking reach ले मेरिडियन और घुसते ही पहले मतलब हम 2 स्लाइस पिज़्ज़ा खा के हम पहुँचे वहाँ पे. और लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा पम्प था नहीं क्योंकि मैं काफ़ी था हंगओवर. बट आई थिंक केशव की रगों में ऐसा मतलब बहुत पैशनेट खून बहता है. For Alan Walker. Generally for things, he has a very very hardcore passion for just life in general. Yes. Was he very very excited? He was quite excited. Like I was so hungover, but he was lifting my spirits due to his excitement. हम इधर उधर घुसते, हम लॉबी में इधर उधर ढूंढने लग गए कि कहाँ है भाई, कहाँ है एलन वॉकर. ऐसे हमने बोला एलन. हमने जाते ही एक्चुअली एक ले मेरिडियन वाले से पूछा कि एलन वॉकर यहाँ पे रह रहा है, वो कहाँ है? क्योंकि हम लोग घुसे ना तो उसके बाद अक्षत अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था. तो अब हम कह रहे हैं कि एलन वॉकर को कैसे ढूंढे. और कोई लाइक मेरे को लगा कि वो रिसेप्शन पे उसकी पूरी टीम वीम होगी और बहुत ब्लेटेंटली वो वहाँ पे होगा, बट वो था नहीं. वहाँ पे पता नहीं भैंचोद बच्चे घूम रहे थे, बहुत सारे गोरे लोग घूम रहे थे, पता नहीं क्या क्रिकेट विकेट का सामान लेके घूम रहे थे. अकॉर्डिंग टू केशव दे वर फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स. They had a helmet with the team logo. Which I don't think anybody who carries helmets is from a cricket team. अरे he was a foreigner. What the fuck? Now it's not even fucking the helmet thing. Now it's just racist. just because बाइक का हेलमेट था भाई, वो क्रिकेट हेलमेट भी नहीं था यार. कि मल्टी फंक्शन की बाइक भी चला लेगा, क्रिकेट भी खेल लेगा. बट ऑनेस्टली इफ आई वाज अ क्रिकेटर आई वुड वेयर अ बाइक का हेलमेट. Bike का helmet. Tinted उसके वो लिए. जो tinted नहीं, जो Will a cop stop you if you're riding a bike with a cricket helmet? No, I think it's only the point is to wear a helmet. It's not about what No, helmet. but the bike helmets are made out of metal, where the cricket helmet is not exactly made out of metal. They are made of plastic or something. Bike helmet is not made out of metal. Steel, not metal. No Steel. steel, not plastic and steel. foam inside. That's या pure steel का helmet Oh पहन के. shit. Sorry, I got भाई confused. तो I got सोच confused. ऐसे बंदे का सर ऐसे ऐसे हो जा रहा है भाई, इतना भारी हेलमेट पहन के. वो साले वो तो helmet की वजह से की गर्दन टूट जाएगी. ग्लैडिएटर थोड़ी है भाई वो. He's not going into war. But actually Can you wear a gladiator helmet? Right? You can wear anything which covers your head. Like a hard case. A beanie. Hard shell. A beanie. hard case. Hard case. That Jew hat. ये मेरे फोन का कवर पहन लिया. That Jew hat. You wear anything. और फिर उसके बाद वहाँ पे हमें बहुत सारे गोरे दिखे और हम लोग ना गोरे देख के कंफ्यूज हो गए. हमने कहा कि इनमें से कोई एक गोरा तो एलन वॉकर शायद हो सकता है, पक्का नहीं पता. बट वी ऑल्सो आई वॉज लिटिल हंगओवर एंड केशव डिडंट वांट टू गो एंड आस्क कि आप एलन वॉकर हो. तो हम बैठ गए एंड वी कॉल्ड अक्षत. वी वेटेड फॉर हिम टू कॉल बैक. एक्चुअली मैंने अभी एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दी. पहुँचते ही मैंने पहले जाके बहुत बढ़िया टट्टी भी करी थी. बिकॉज व्हेन आई ड्रिंक मेरे को उस टाइम पे उल्टी नहीं आती, पर मेरे को अगले दिन थोड़ी सी टट्टियाँ लग जाती हैं. आई डिडंट शिट आउट द पिज्जा, आई शैट आउट व्हाट आई हैड लास्ट नाइट. Which was the pizza? That was all. We ordered pizza the night before. That's what we were eating in the morning. So you didn't even know what. How do you know it was previous night's pizza and not today's pizza? Because I know that that one didn't just like मैंने 1 सेकंड में खाया और पूरा थ्रू भी हो गया भाई. इतनी सारी it goes through your
mouth, then it goes to your stomach, then it goes through your lips. How long do you think it stays in your fucking mouth? No, then it goes to your small intestine. He chewed and he just like swallowed it like after he sat in the car. अबे small intestine में जाता है, फिर वहाँ से वो बहुत सारी जगह में जाता है, फिर उसके बाद it comes out from the bottom. So I can feel it when it's happening that fast. But Comes out of his toes. But it wasn't happening that fast. और उसके बाद टट्टी करने के बाद वही गोरे वोरे में देखा कहाँ है एलन वॉकर, नहीं मिला. फिर फाइनली हमारे को दिखा आरजे अभिनव. वो अपने लंबे लंबे बाल लेके बस ऐसे चलता हुआ आ रहा था. एंड वी वर क्वाइट मेस्मराइज्ड. इट वाज ऑनेस्टली लाइक द फर्स्ट टाइम आई स्पॉटेड अ डॉल्फिन. इट वाज वेरी एलिगेंट. यूनिकॉर्न. You calling him a dolphin? In a good way, because dolphins are also mammals and they can communicate with humans. Aren't they almost extinct? No, what the fuck? No, बहुत है. Oh, those are sharks, like those white great sharks or something. White great sharks or something? What do you mean? Some sea animal is almost extinct. Whales. No, so many sea animals are almost extinct, dude. What the fuck? You're in 2022. Can you please get with the times? You want me to remember every animal that's going extinct? Yes, if they're Which important. animal is going extinct? If they're If you're calling which animal is important, which animal is not important. Yeah, also. the only That's animal. more. The You're being animalist. The only animal that's important is a human. Baby, fuck, kill all animals. JK, I love all animals. I love plastic straws. Fuck the turtles. Let them deep throat on that straw. Yeah, don't actually cancel me. Anyway, so फिर उसके बाद हम लोग टट्टी वट्टी करके सब कुछ करके बैठे कॉफ़ी पीने, और कॉफ़ी पीते ही हमें दिख गया आरजे अभिनव इधर उधर घूम रहा था. बट आरजे अभिनव के साथ एक्चुअली में 2-3 और लोग थे, तो हम थोड़े ऑकवर्ड हो गए क्योंकि वो जाके उन 2-3 लोगों के साथ बैठ गया. तो हमने सोचा कि अब आरजे अभिनव के साथ जाके बैठ तो सकते नहीं है, मतलब जाके लाइक इफ ही से हाइट हिम देन ही वो ऐसे नीचे से हमें ऐसे ऊपर हाथ देगा और फिर वो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं खड़ा हुआ तो फिर हमारी थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि अरे आरजे सर ऐसे ऐसे और वो ऐसे नीचे बैठ के देख रहा है, तो फिर इट वुडंट लुक नाइस. You thought too much into it. Yeah, because I actually fucking love him. हाँ, तो हम वापस आके अपनी सीट से बैठ गए और आरजे को थोड़ी देर कहा कि हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे सर. Mentally हमने कहा. हाँ, मेंटली हम दोनों ने एग्री कर लिया. और वो भी ऐसे से कर रहा बैठे like he just heard it like जादू. He was scratching his ear. We took it as a sign. We took it as a sign. Exactly, yeah. फिर हम वापस जब बैठे हमारे को अंदर बुला लिया मिलने के लिए with the DJ Alan Walker. Oh. They kept on saying RJ, so I got confused. RJ is different DJs अलग. You're a musician. What the? RJ DJ. यार. रेडियो जॉकी और डिस्को जॉकी. डिस्क जॉकी. डिस्को जॉकी होता है ना? वो बॉल के साथ. वो ऐसे से कर रहा है. स्टेज पे ऐसे कर रहा है, सब रेव कर रहे हैं. डिस्क जॉकी ऐसे करता है, डिस्को जॉकी ऐसे से करता है. हम ऐसे से कर रहे हैं. पॉडकास्ट है. अबे तो वीडियो पॉडकास्ट है. ऐसे ऐसे फिर वो बॉल जो डिस्को बॉल नहीं होती है, जो सिर्फ सुन रहा है वो कह रहा है ऐसे 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 कर रहा है. ऐसे 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 स्क्वीज. उसके बाद हम गए अंदर और घुसते ही अंदर पहले हमें दिखा एक बहुत लंबा सा गोरा. एंड देन वी वर लाइक इज दिस एलन वॉकर. बट जैसे ही फिर हम गए हमने ऐसे पहले हाथ निकाला और एक गोरे को हाथ मिलाया. पहले लंबे वाले से मिलाया था ना, लंबे वाले से फिर मीडियम वाले से, लंबे वाले से मिलाया हाय, मीडियम वाले से कि हाय. और फिर उसने बोला हाय आई एम समथिंग insert name here, like some insert some Norwegian name here. तो उसके बाद like Thor. Hyphenstein. Hyphenstein. That's a little German, honestly. Hyphenstein is hyphen and Einstein mix. So hi, I'm Hyphenstein. ऐसे उसके बाद Hyphenstein से हमने नाम मिलाया and then हम हाथ मैंने आगे किया and then the guy said hi, I'm Alan Walker. And on like a good day, I would be able to respond to that and say something back, but I was very hungover, so I was like, hi, I'm Anmol. The dude's quite humble to say hi, I'm Alan Walker. Yeah, like he would like अगर हम लोग कोई Bollywood celebrity से मिल रहे होते, not all Bollywood celebrities, but most Bollywood celebrities से मिल रहे होते, तो वो अपना नाम बताता ही नहीं. और अगर हम बिना कुछ बोले कि I'm a big fan, I know who would tell his name. Who? Tiger Shroff. Tiger Shroff is a great guy. Yeah. Shout out to Tiger Shroff. Tiger Shroff, if you ever want to come film a podcast, don't be afraid. Don't be a choti bachchi. We don't we don't know how to fight, so we won't do anything to you. Or flip. The only flip I know is fuck you. Not you though. Anyway, so फिर उसके बाद हम लोग गए और फिर उसने अपने आप को like he himself said hi, I'm Alan Walker. मैंने बोला hi, I'm Anmol Raina. And dude, it all happened so fast that I didn't even get a chance to say that I'm a big fan or anything. Like वो बस इतना सा interaction हुआ और फिर वो Sony Music वाला बंदा कहता है कि
नहीं एक्चुअली उसके बाद फिर आया केशव अस्थिर. मेरा पर्सपेक्टिव ये अलग था इस पूरी सिचुएशन का कि हम 5 लड़के एक लाइन में खड़े हुए हैं. अब एक लाइन में खड़े हुए सब लोग हाथ कैसे मिलाएंगे? अनमोल मेरे आगे है, मैंने लंबे वाले लड़के से हाथ मिलाया जो हाइफेनस्टाइन था. फिर मैंने दूसरा फिर एक दूसरा लड़का था, वो भी एलन वॉकर का दोस्त था, मैंने उससे हाथ भी मिला लिया. मैंने एलन वॉकर को छोड़ के 2 लड़कों से हाथ मिला लिया और एलन वॉकर से हाथ ही नहीं मिलाया. एलन वॉकर मेरे ने बस दूर से एक दूसरे को देख लिया कि उसको लगा कि मैं रील बनाने आया हूँ. नहीं उसको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा था. थोड़ी देर के लिए लगा था. थोड़ी देर के लिए वैसे लग सकता है क्योंकि हमारा सेटअप भी बहुत प्रोफेशनल था. हम एक टू स्क्रू लाइक हाफ फक्ड DSLR लेके गए थे. Wait, I'm going to insert an image here of what actually you can't tell from this angle. Basically the camera that's here facing towards me वो वाला उसी half fucked tripod पे है, पर वो actually tripod बहुत reliable है. और उसके बाद केशव ने ना एलन वॉकर को कर दिया बहुत awkward क्योंकि एलन वॉकर को उसने हाथ नहीं मिलाया एलन वॉकर से. तो वहाँ पे वो एक weird सा tension build हो गया because everyone in the room could sense it. Everyone in the room could sense it, but it just made it like Keshav became the alpha. You guys came to meet Keshav then. Yeah, Alan Walker came to India to meet Keshav. It was DJ Keshav. Yeah. From then on, it was DJ Keshav. Everything was Keshav. Like he became that whole room. Like the whole energy was Keshav was there. The bodyguards started protecting Keshav. There was sadly no bodyguard. We were expecting there to be a bodyguard, but there was only Hyphenstein. Hyphenstein was the only guy his there. His best friend. His long friend. And his manager. And then उसके बाद केशव ने awkward कर दिया एलन वॉकर को थोड़ा सा. और फिर सोनी म्यूजिक वाले ने सेंस कर लिया था थोड़ा नहीं पूरा उसने मास्क पहन लिया फिर से. हाँ एग्जैक्टली वो और अगर गाइज जो तुम लाइक ऑल ऑफ द पीपल हु आर लाइक बिग एलन वॉकर फैंस विद वॉकर एज देयर इंस्टाग्राम यूजर नेम का सरनेम, वी सॉ एलन वॉकर विदाउट अ मास्क एंड आई विल नॉट टेल यू व्हाट ही लुक्स लाइक. You know it's on Google. Fuck. They probably have not Googled it yet because it's like sacrilege. They just don't want to know. It's sacrilege. They don't want to know Alan Walker's real face. Yeah, they that's what like it's like holy. They don't want to. Holy? I bet it's like holy to Alan Walker is holy to them. Yeah. Because do me a favor, let's play holy. Land barse. Anyway, फिर उसके क्या केस किया तूने? उसके बाद वहाँ पे फिर केशव ने जब ऑकवर्ड कर दिया एलन वॉकर को तो सोनी म्यूजिक वाला बंदा आ गया टू द रेस्क्यू एंड ही सेड कि अरे जाके रील बना लो जल्दी से, ये वाला कमरा मिलेगा तुम्हें. ऐसे बोल रहे एलन वॉकर के सामने अबे वो ये वाला कमरा मिलेगा तेरे को. नहीं वो ऐसे थोड़ा ऐसे ही उस कमरे को देखते ही हम दोनों ने फिर से एक चीज़ बोल दी, ये कमरा नहीं चलेगा. हाँ हमने बोली थी. अबे बिकॉज दैट कमरा वाज वेरी डार्क एंड इट वाज वेरी क्रैम्प्ड एंड स्मॉल. इट वाज लाइक अ वियर्ड कॉन्फ्रेंस रूम. तो हमने बोल दिया कि भाई ये कमरा तो बिल्कुल नहीं चलने वाला. फिर हम उसके बिल्कुल साइड वाले कमरे में चले गए जो काफ़ी सिमिलर था और ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे. तो हमने फिर बोल दिया ये वाला कमरा चलेगा. और उसके बाद हमने प्रिपेयर किया लाइक वी एक्टेड लाइक वी वर सेटिंग अप एवरीथिंग. केशव ने एक बार ही ट्राईपॉड रखा और एक्ट किया कि ट्राईपॉड रख के कैमरा वैमरा डाल के अब हम मतलब केशव लाइक इज ट्राइंग आउट ऑल द एंगल्स एंड शिट एंड ऑब्वियसली it doesn't work out because Keshav is not a videographer. Keshav is a photographer. He's not a videographer. As soon as the camera just goes on for more than 5 seconds, he gets very confused. Yeah, it's like वो burst ले सकता है 5 सेकंड का, but उससे ज़्यादा हो जाए कैमरा उठता ही नहीं है. तो वो उसका सर पा जैसा हो जाता है. और फिर उसके बाद then fucking Keshav tries these different angles and obviously वो एंगल चले नहीं. तो उसके बाद केशव ने अनस्क्रू कर दिया कैमरा और हाथ में ले लिया और हमने एलन वॉकर को बोल दिया भाई देख अब हम रेडी हैं तू आ जाओ. फिर एलन वॉकर आया, हाइफेनस्टाइन आया और उसका मैनेजर आया. और मेरे को लगा था कि एलन वॉकर सिर्फ अकेला बैठा होगा और हाइफेनस्टाइन और मैनेजर बाहर चले जाएंगे और मैं केशव एलन वॉकर एक कमरे में बंद और हम लोग रील बनाएंगे. तुम उसको लूट लोगे. और शीशा फोड़ के भाग गए हम. एलन वॉकर वाज वेयरिंग अ प्रीटी फैंसी वॉच. आई थिंक ही वाज वेयरिंग लाइक एन ओमेगा और समथिंग. या एलन वॉकर वाज वेयरिंग अ नाइस वॉच. इट वाज लाइक अ ब्लैक एंड गोल्डन. ऑलरेडी आग भी मार ली. लेकर जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? पर उसका आईफोन 12 प्रो था, 13 प्रो नहीं था. नहीं तू क्या नहीं तेरे भी तो वही है. तेरा तो 12 है. तो वर्ल्ड रिनाउंड डीजे और वर्ल्ड रिनाउंड डीजे साले हम नंगी हथकलियां हथकड़ियां कलाइयां हम गाना है वो चिट्टियां कलाइयां रिवर्स कर दिया भाई. दे वर ट्राइंग टू से चिट्टी लाइक वाइट कलाइयां ने कलाइयां रिवर्स. अबे वो एमके को अलग वर्जन भी आता. You're gonna get cancelled for that one, but it's okay. This one is an unedited. It's an unedited podcast, guys. We're out here just doing everything raw. और फिर उसके बाद
या फिर हमने एक्ट किया कि सेटअप वेटअप हो रहा है ये वो और हुआ नहीं, हाथ में ले लिया कैमरा, हाइफेनस्टाइन आ गया, मैनेजर आ गया और एलन जाके बैठ गया वहाँ पे। एलन बैठा, हमने एलन को स्क्रिप्ट समझाने क्या, मैंने उसको बोला कि देख जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो मैं बोलूँगा हिंदी में, तो मैं तेरे को एक बार इंग्लिश में समझा देता हूँ कि मैं एक्चुअली बोल क्या रहा हूँ। देन आई एक्सप्लेन द रील टू हिम कि मैं हूँ, मेरा लाइक आई हैव दिस थिंग विच इज़ आई एम अ देसी रैपर ऑन माई इंस्टाग्राम और व्हाटएवर, आई एम सपोज टू बी लाइक आई हैव दिस रील सीरीज, आई एम अ देसी रैपर and I'm going to pretend like I'm coming to pitch you my rap and I'm asking you for a beat and you're supposed to say that this is shitty and push me out. Obviously he didn't have any security, but that's not obvious, but he didn't have any security. I don't know why, but The hotel was safe, so it wasn't. I just went in there and took a fat shit. Like what if I just You want cops to come as soon as you take a fat shit? What if I took that shit and launched it on someone? It was not safe at all. और फिर उसके बाद हम लोग explained it to Alan Walker and we start filming. तो पहले टेक में तो एलन भाई बिल्कुल पैशन नहीं था। लाइक पहला दिन सेट पे कोई मतलब उसको मतलब कुछ था कि क्यों मेरे को बिठा दिया यहाँ, हाइफेनस्टाइन के साथ बढ़िया डूब मार रहा था ऊपर कमरे में बैठ के, ऐसा वाला एटीट्यूड था उसका। फिर उसके बाद पहले ट्राई में तो बंदे ने मेरे को कह दिया कि तूने ज़्यादा अच्छा रैप कर दिया भाई, दिस इज़ वाई गाइज आई हैव गॉटन इनटू म्यूजिक बिकॉज एलन वॉकर व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू बी फनी एंड बी शिटी लाइक व्हाइल रैपिंग for the reel, Alan Walker said that bro you're too good, you have to be a little shittier, be offbeat. He said be offbeat. मतलब मैं कोशिश करके भी offbeat नहीं हो पाया, तो मैं तो मेरे सामने कौन सा रैपर टिक पाएगा अभी, तो मैं बस आई एम जस्ट वार्मिंग अप, चिक that's a DJ actually. That's a ऐसे किसी रैपर ने चिक कर दिया ना। फिर उसके बाद माँ का एलन भाई ने पहली बारी बिल्कुल सही से एक्टिंग नहीं करी और ये भी बोल दिया कि तू तो बिल्कुल बीट पे है तो तू थोड़ा ऑफ बीट हो। फिर मैं दूसरी बारी आया और मैंने बिल्कुल इस बारी अच्छे से ऑफ बीट करके करा, और मतलब हमने ना उसको बोला था कि वंस वी डन फिल्मिंग द फर्स्ट पार्ट तब तेरा कोई भी दोस्त बाउंसर बन के आएगा और मेरे को धक्का दे के बाहर निकाल देगा। बट एज सून एज आई सेड हाफ द थिंग, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू गाइज, मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव सीन द रील, इफ नॉट वील लिंक इट, गो वॉच इट बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर रेफरिंग टू राइट नाउ। तो उसके बाद हम लोगों ने, मैंने आधा रैप किया और एलन का हाइफेनस्टाइन पीछे से आके मेरे को आधे रैप में ही धक्का दे दिया भाई। हाइफेनस्टाइन इतना पैशनेट हो गया था भाई, हाइफेनस्टाइन वाज इन द मोमेंट। दूसरी रील जब हमने शूट की टेक 2 के अंदर ही, एक तो एलन वॉकर की कहते हैं, एलन वॉकर भी एक्टिंग में पूरा पैशनेट हो गया, शाहरुख बन गया सीधा बॉलीवुड के ट्यूटोरियल उसने देख ली जल्दी से और हेड नॉक बॉलीवुड का ट्यूटोरियल कहाँ देख सकते हैं? मेरे को भी पॉडकास्ट नहीं करना, तुम्हारे साथ एक्टर बनना है मुझे। बॉलीवुड का ट्यूटोरियल कहाँ देख सकते हैं? ये मेरे को ही करना है। किसने दिया ट्यूटोरियल? खान अकेडमी खान अकेडमी सब कुछ कर रहा है। ये करते ही कहते उसने जैसे ही देखा कैसे बनते हैं एक्टर, उसने कहते शुरू कर दी अपनी एक्टिंग पूरी। उसके दोस्तों ने थोड़ा थोड़ा देख लिया था साइड से। भाई हाइफेनस्टाइन ने तो पूरा देख लिया था। इसने थोड़ी बॉलीवुड की देखी थी, थोड़ी ओवर एक्टिंग ही कर दी बंदे ने। अबे उसने टॉलीवुड की भी देखी थी। टॉलीवुड भी देख ली इन्होंने। जैसे ही मतलब अनमोल ने 2 लाइन बोली, 8 लाइन का रैप था, 2 लाइन बोली, 8 लाइन। हाइफेनस्टाइन ने अनमोल को पकड़ा हाथ से और बाहर निकाल दिया। भाई हाइफेनस्टाइन वाज हैविंग नन ऑफ इट। मैं सोच रहा हूँ ये अनस्क्रिप्टेड हो रहा है, मैं कैमरा रोकूं क्या करूं, अनमोल को पीट रहे हैं अब ये लोग। बाहर निकाला मेरे को बहुत बेइज्जती करके और फिर बोला कि तू बाहर निकल, भोसड़ी के मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला। Everyone over there was actually really nice. Alan Walker was extremely humble, very very sweet. And उसके बाद we wrapped up the filming of the reel and we said, Alan bhai, thank you so much. We will see, like we'll see you at the show in the evening. Like obviously, I don't know why we said that to him. Obviously, we'll see him at his own show. How was the concert? We'll get to it. I'm getting there. So we said show पे मिलते हैं, और बाहर जाते टाइम हमारा भाई आ गया अंदर, आरजे अभिनव। तो सबसे पहले लुक एक्सचेंज होते ही मैंने आरजे अभिनव को दी बड़ी सी स्माइल, और आरजे अभिनव ने प्रॉब्ली स्माइल बैक इसीलिए किया क्योंकि उसको लगा कि मैं भी सोनी की टीम का हूँ। Because I'm pretty sure because आरजे अभिनव मेरे को देख, ऑनेस्टली आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कॉकी, बट मेरे को लग रहा है तूने एक ना एक राइमिंग रील तो देखी होगी। Why were you pretending like you don't know me? You're going to be on this podcast. आप इस podcast पे बहुत जल्दी आने वाले हो, रिस्पेक्टेड आरजे अभिनव सर। और फिर उसके बाद आरजे अभिनव देखा, हमें स्माइल एक्सचेंज हुई, पर आरजे अभिनव आया था अपनी 3 लोगों की अल्ट्रा प्रोफेशनल टीम के साथ, जो बहनचोद आते ही मतलब जैसे F1 के टायर चेंज नहीं होते कट 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 वैसे ऐसे करके, ग्रीन स्क्रीन, प्याज,
हल्दी सब कुछ निकाल कुछ। लिया। और एक F1 की टीम, अबे green F1 screen, प्याज, टमाटर। F1 की टीम जैसे जल्दी से टायर नहीं चेंज करती, वैसे उसकी टीम आई, सब सेटअप कर दिया 1 सेकंड के अंदर। मैं बोल भी नहीं पाया कि सर बिग फैन ये वो, कुछ नहीं कर पाया मैं, सब कुछ सेटअप हो गया उसका आधे सेकंड के अंदर। और मैंने कहा भाई साहब क्या करे, तो मैं और केशव जाके साइड में बैठ गए। हमने कहा विल वेट टिल आरजे अभिनव इज डन, क्योंकि इसको बिना हाई बोले तो हम जा नहीं सकते। फिर देखा हमने आरजे अभिनव अपनी बढ़िया रील बना रहा है। आरजे अभिनव ने एक ही रील डाली भाई, जो फनी वाली थी वो अभी तक नहीं डाली उसने। वो शायद शूट करके कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी उसमें। आई थिंक वो ग्रीन स्क्रीन को इनकॉर्पोरेट कर नहीं पाया, क्योंकि वो फोन वोन पे कर रहे थे रिकॉर्ड यार। Green screen doesn't work that well anyways. I don't think they were even filming on a tripod. I'm pretty sure They were filming on iPhones with the with thing in the back. handheld, right? Yeah, they weren't filming on a tripod, so I don't know how they were expecting a green screen to work. Yeah, Exactly, because both, like, you can't be moving and the subject be moving and everything can't Too many be. shadows fuck up green screen. Abhe nahi, but too many shadows. There was no lighting, and also I'm like, I don't know if you can like actually. I've never used a green screen, so I can't properly comment on this. But अगर तुम्हारा हाथ भी हिल रहा है तो green screen fuck up नहीं हो जाएगी? I'm pretty sure. He anyways all his reels is without the green screen ना, like how you do the Instagram filter. नहीं कुछ भी यूज करता है वो, बट नहीं, he has the green screen filter on Instagram. हाँ I know, but this time he had an actual green screen. बट एरन वॉकर को जैसे हम जानते हैं वो पहली रील में फकअप करता है, दूसरी में परफॉर्म करता है। पर उसने पहली वाली वो वाली करी थी जो हमें इतनी अच्छी नहीं उसके पास ज़्यादा followers है ना, एरन वॉकर के पास नहीं आरजे के पास, मॉली से। बट उसके आरजे अभिनव के डीजे से भी ज्यादा फॉलोअर हैं एरन वॉकर से। नहीं, I don't think so. I don't think so. Alan Walker I'm has talking more about real followers. ones, not the bots. भाई Alan Walker has a cult following. What do you mean? Those aren't bots, brother. Alan Walker like can get anyone murdered. Like if he says Walker's like Assemble. 8.7 million है भाई साले। तेरे को कटवा देगा एलन वॉकर, कोई पूछेगा भी नहीं तेरे साले बारे में। गुड़गांव में बोलेगा ना कि केशव अस्थिर रहता है यहाँ, या पता लीक हो गया ना तेरा एलन वॉकर के लड़कों के थ्रू, साले कहीं नहीं मिलेगा। तू गैलेरिया में जो जाता है ना, डीजे की डिस्क बन जाएगा वहीं पर, डिस्को की बॉल बन जाएगा बेटे तू। काट देंगे भाई इसको, कहीं नहीं मिलने वाला। यहाँ पर बॉल बैठी होगी सीट पे। ईडीएम सुनने वालों से इतना डरता नहीं है। एक ईडीएम नहीं है भाई, 1000 ईडीएम वाले आने वाले एक बार तेरे पास। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं उनके लिए बीट चला दूंगा और नाचना शुरू हो जाएगा। ऐसे थोड़ी चलते हैं डिस्को जॉकी सारे मारने आ रहे, बीट चलाने, सारे नाचने लगे। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाने लगे सारे। वो मेरे फैंस बन गए, केशव वॉकर। अबे तूने शादी कर ली उससे? नहीं सिर्फ नाम चुरा लिया। ऐसे थोड़ी होता है, चुरा लिया, शादी करी, चुरा लिया। म्यूजिशियन डीजे भाई। फिर अपनी आरजे अभिनव ने कर दी अपनी पता नहीं जो भी रील वील बनाई प्याज व्याज के साथ। हम लोग पेशेंटली वेट कर रहे थे। उसके बाद हमने जाके आरजे अभिनव को वी गेव हिम हिज फ्लावर्स, वी वर लाइक सर आरजे अभिनव वी फकिंग लव यू। केशव ने बोल दिया कि अब भी मैंने सुबह रोनाल्डो वाली वीडियो देखी थी। आरजे अभिनव कहता है कि जिसने भी, क्या बोला था उसने, जो फॉर्मेशन देखता है सब मेरे दोस्त हैं, दिल के करीब है, दिल के करीब और दोस्त हैं। हाँ सब कुछ है। फिर हमने आरजे अभिनव भैया को बोल दिया कि हम आपको मिलेंगे शाम को। हमने आरजे अभिनव भैया को ये भी बोल दिया कि हम लोग आए थे बेसिकली आपके लिए यहाँ पे। और फिर खुशी खुशी मैं और केशव गए AMK के घर। AMK के घर पे हम क्या करने गए थे? तेरा जो ट्रैक था उसका कवर आर्ट बनाने के लिए। या इधर आज साले नहीं, that was before. नहीं उसी दिन था वो। नहीं, that was before. No bro, that was that day only, because I remember that was that day, but before you went, and then after you went there. Before I went, no, we went there early in the morning. You're getting confused. We went there, घर आए, कवर आर्ट बनाया, फिर हम कट लिया। हाँ, फिर हमने कवर आर्ट बनाया और फिर हम लोग कटे from AMK's house around 6:37। हाँ नहीं भाई, cover art was before you went to the concert. bro. Of course it was, cover art was हाँ, तो before the thing, concert because it was daylight ना। हाँ, कॉन्सर्ट से पहले ही तो बोल रहे हैं, कॉन्सर्ट से पहले तेरे घर आए थे हम। हाँ, from concert से पहले आए थे, after the hotel. That's what we're trying to say, guys. AMK is a musician, not a scientist, so he's not very brainy. Sorry. Say it in a more musical manner, brother. Sorry. That was kind of creepy. On the headphones, it sounded very creepy. It sounded like a भूतिया आंटी जो वो क्या है फरीदाबाद रोड पे जो भागती है, वो sounded like that. केशव साड़ी पहन के भागती है केशव। मैं नहीं भागता अब नहीं भागता तू? क्यों? किसी पकड़ लिया था? अंडरपास से भागता है? चुल्ले खड़े होते हैं वहाँ पे। अंडरपास से भागता है? अंडरपास में बहुत गाड़ी चलती है। तो तू कैसा फट्टू भूत है? अब भूतों का टाइम खराब हो चल रहा है। घर पे भागते हैं। कोविड के बाद से अब वो घरों में ही रहते हैं। मैं जिम जाके ट्रेडमिल पे भूत बन के आता हूँ एनी टाइम। शाउट आउट टू एनी टाइम। फिर हम पहुँचे मेरे घर वापस। हमने कहा कि अब जाएंगे हम कॉन्सर्ट। मैंने पी थोड़ी सी प्री गेम दारू और फिर बहुत मतलब
हम लोग कोशिश कर रहे थे सुबह से भंड होने की, पर हुआ ही नहीं. 1-2 बियर पी, उसके बाद थोड़े बहुत शॉट लिए, बट चढ़ते ही उतर रही है. फाइनली जब हम पहुँचे कॉन्सर्ट, हम लगे लाइन में. हम पहुँचे अराउंड 8-8:30. कॉन्सर्ट शुरू हुआ था 6 o'clock. नहीं 4 o'clock. हाँ 4 बजे शुरू हुआ था कॉन्सर्ट. हम पहुँचे 8:30 बजे, 4.5 hours later, और तब भी बहनचोद भर के लाइन लग रखी है बाहर. It's a dedicated DJ. He played a 6-hour set. No, he didn't. नहीं, बहुत अलग-अलग होते हैं. 8-9 people before him. He came in the last 2 hours, I guess. फिर उसके बाद पहुंचे हम. उसके पास इतने गाने ही नहीं है. वो बाकी सबके बजाता है. हाँ, फेडेड उसके सबके पास बजाता है, सबके बजाता है. I mean. और फिर हम लोग भाई देखा हमने, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है भाई, लोग लगे हुए. और VIP वाले पासेस थे हमारे पास जो हमें फ्री में मिले थे. हम कभी वैसे VIP के पासेस खरीदते नहीं. फ्री वाले VIP पासेस से हम लगे लाइन में, और हमें लगा होगा अराउंड half an hour 45 minutes ईजी, राइट, टू गेट टू द फ्रंट ऑफ द लाइन. वी गेट टू द फ्रंट ऑफ द लाइन, और हमारे आगे 3 बिल्कुल लफंगे लौंडे, 4 लफंगे लौंडे, जिनमें से 3 को पास मिल गया, और एक के लिए सब लड़ रहे कि कैसे पास नहीं. वो बेसिकली बुक माई शो वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा पास है डुप्लीकेट. उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा पास डुप्लीकेट है. You guys actually have only 3 passes and one of them is a duplicate pass. Which we were like कि देखो भाई चोरी के पास से घुस रहे अंदर. वो भी एलन वॉकर कॉन्सर्ट पे कैसे होते हैं, कैसे आ जाते हैं चप्पल चोर साले. ये वो हम कह रहे हैं, मैं और केशव कह रहे हैं, पीछे से भी एक लड़की कह रही है क्या चप्पल चोर लौंडे है, ये वो जल्दी करो ना, ऐसे करिए, जल्दी करो बहनचोद, क्या कर रहे हो. फिर हमारे को उसने ऐसे बोला कि इसको बोल जल्दी करे, क्या कर रहे हैं चप्पल चोर. फिर उसके बाद मैं और केशव, वो 3 थोड़े से 4 थोड़े साइड हो गए, और हम लोग फिर like they were still there arguing, but they were arguing with another dude. I don't know if that was the main dude. They were arguing with another dude. मैं और केशव साइड से गए. मैंने दिया पहले अपना पास जो था मेरी ईमेल पे, फिर मैंने दिया अपना पास जो था व्हाट्सएप पे, और हमारे को बहनचोद बुक माई शो वाला कह रहा है तुम्हारा भी डुप्लीकेट. अब जो पीछे लड़की है वो कह रही है बहनचोद ये तो फंस गए भाई, एक और डुप्लीकेट. अब तो वो कह रही है अब तो एलन वॉकर मिस हो जाएगा. ये भी चप्पल चोर. हाँ भाई वो बहुत पैशनेट थी एलन वॉकर के. आई थिंक उसके भी इंस्टाग्राम यूजर नेम इतनी पैशनेट थी, that's why she came so late. अबे बट स्टिल सिर्फ एलन वॉकर के लिए थी. हाँ एग्जैक्टली, शी डिडंट वांट टू हियर एनी अदर स्टफ. If she was a real Walker fan, she would have gotten there and waited through the heat. She didn't want to hear any other DJ. Just no, Alan but Walker. why would she go? She wants to see Alan's face like that in front. She would have wanted to be in front of the stage. वो एलन वॉकर व्रत पे थी. वो सिर्फ व्रत पे थी. एलन वॉकर व्रत, वो सिर्फ एलन वॉकर सुन रही थी. Like you know when you're in a water fast, then you only have water. So she was on an Alan Walker fast, only Alan Walker. और उसके बाद हमारे को भी बोल दिया कि ये है डुप्लीकेट. और वहाँ पे मैं बौखला गया. मैंने कहा बहनचोद ये क्या है, क्योंकि भाई बुक माई शो तुम लोग एक्चुअली में चूती हो क्या. 15 साल बाद कोविड के बाद कॉन्सर्ट हो रहा है और तुम लोग बहनचोद तब भी बकचोदी कर रहे हो, तब भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, एक चीज़ नहीं कर पाए. तुम लिटरली एक चीज़ करते हो, पासेस बेचते हो, वो भी नहीं कर पा रहे तुम ढंग से. फक यू बुक माई शो. तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी टिकट्स कैंसिल हो गई. कैसे कैंसिल हो जाएगी बुक माई शो. मैं आ रहा हूँ तुम्हारी ऑफिस गुड़गांव में. आई एम किडिंग. आई डोंट नो व्हाट द लॉज बिहाइंड सेइंग थिंग्स ऑन द इंटरनेट आर. ये बुक माई शो का ब्रांड एम्बेसडर बन गया. गाइस स्पॉन्सर मी. शाउट आउट टू बुक माई शो. शाउट आउट टू एंड शाउट आउट टू बुक माई शो. भाई अगली बारी बुक माई शो मैं स्विगी पे बुक कर रहा हूँ भाई अपनी सारी चीजें. कहीं स्विगी भी प्लीज भाई बुकिंग वाली चीजें शुरू करो स्विगी लोग. कहीं भी नहीं. स्विगी का खाना भी नहीं पहुंचता. कल हमारे 2 बर्गर्स मिसिंग आ गए थे. 2 फ्राइज मिसिंग आ गए थे. हाँ यार स्विगी यू ऑल यार एक डिलीवरी पॉडकास्ट की शुरू किया है. डिलीवरी सर्विस शुरू करनी थी जो सब कुछ डिलीवर करती है इंक्लूडिंग पासेस. एनीवे फिर बुक माई शो मादर चोद ने हमें घुसने ही नहीं दिया भाई. बुक माई शो ने कह दिया कि तुम सारे बहन जो पपलू हो. फिर भाई मैंने कहा व्हाट द फक, और मैंने सीधे निकाला अपना फ़ोन. मैंने कहा भाई तू ये देख, मेरे को दिए हैं पासेस एलन वॉकर ने, और मैंने एलन वॉकर के साथ फोटो दिखा दी क्योंकि मैं हूँ तो एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली का. आप गुड़गांव में रहता हो बट मैं हूँ तो दिल्ली का. तो मैंने कहा भाई देखियो एलन वॉकर है मेरा दोस्त, उसने दिया मेरे को पासेस, तू कैसे मेरे को नहीं जाने देगा. और बुक माई शो वाले तो होते ही हैं ढीठ मादर चोद. उसने कहा नहीं जाने दूंगा. मैंने कहा अपने मैनेजर को बोला. उसने भी पुल अप कर लिया. ये देख एलन वॉकर ने मेरे को ये नौकरी दी है. अबे फिर वो कहता है कि मैंने उसके बाद वो कहता है कि डूड ही गिगल्ड, ही वाज लाइक ये तो मादर चौथ हवाबाजी कर रहे हैं. वो हंसा, उसको लगा फोटोशॉप करी क्योंकि एलन वॉकर क्यों मास्क पहना तूने. एलन वॉकर उसको लग रहा था कि किसी भी गोरे को हमने मास्क पहन के खड़ा करवा दिया क्योंकि एलन वॉकर उसमें मास्क पहन के बैठा था. So this was all like premeditated कि तुम गोरों के साथ पिक्चर दिखाओगे. डुप्लीकेट पास पे डुप्लीकेट पास लेके दो बारी सेम पास दिखा के फोटो दिखा के एक रैंडम गोरे को पकड़ा ताजमहल के बाहर.
कि भाई तू हमारे साथ फोटो ले, 6 महीने बाद एलन वॉकर होने वाला है। और फिर हमने फेक करके, भाई बंदा बुक माई शो वाला बहनचोद जेम्स बॉन्ड की तरह दिमाग चला रहा है साला। और तभी हंस भी रही है, लाइक हंस के बोल रहा है अब क्या कर सकते हैं। He's like, I know the secret. Dude, yeah, he really thought he caught us. फिर उसके बाद मैंने कहा मैनेजर बुला, उसका मैनेजर पीछे से खड़ा है और हमारी तरफ देख, भाई बिल्कुल साइड में खड़ा था, वो बाकी 3 जो 4 चप्पल चोर थे उनसे बात कर रहा था। और फिर मैंने कहा मैनेजर बुला, मैनेजर पीछे से कह रहा है कि उस हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, उसको देख के कह रहा है कि अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो मत आने देना। हमारे को देख के भी नहीं कह रहा, भाई कोई इज्जत नहीं हमारी भाई वहाँ पे। फिर हम लोग बेंच बेइज्जत निकले बाहर वहाँ से लाइन में, और वही जो लड़की इतनी पैशनेट थी, आई थिंक उसका भी साली का डुप्लीकेट आया था। आई होप आया हो। इतने सारे डुप्लीकेट पता नहीं क्या है भाई साला एलन वॉकर, इतने 4 साल बाद कोई कॉन्सर्ट हुआ है बेंच, एलन वॉकर की आधी टिकट सेल्स तो डुप्लीकेशन में निकल गई भाई। डुप्लीकेट क्या होता है कि रैंडम सीरियल नंबर लोग गेस हाँ, कर रहे हैं, लाइक कोई रैंडम QR कोड 2 बारी सेम पता नहीं कैसे बन गया भाई। तुम एक कुछ क्रैक करने की कोशिश करते हो, तुम्हें सीरियल कोड मिलता है ना ब्रो। One was on fucking WhatsApp, one was on the email. They were 2 different passes that were given by different people. Codes different. Bro, there was no code. There was just the QR code. Yeah, the QR code was obviously sent different. at different time by different people. All together. And I was like, what the fuck? और फिर हम लोग दोनों निकले बाहर। फिर वही हमने सोनी म्यूजिक वाले को कॉल किया जो हमारा कोऑर्डिनेट करा रहा था एलन वॉकर वाला सीन। हमने बोला ब्रदर व्हाट्स गुड, हमारे को घुसवाओ यार, यहाँ बुक माई शो वालों ने हमारे साथ बकचोदी कर दी। तो कह रहे हाँ हमारे मुंबई शो में भी ऐसा हुआ था। तुम लोग साले हर सिटी में जाके माँ चोद रहे हो बुक माई शो। हर सिटी में जाके बुक माई शो बस बहन चोद। वहाँ पर भी डुप्लीकेट पासेस हो रहे थे भाई। बुक माई शो हर सिटी में जाके बुक माई चोदी कर रही है भाई। फालतू तो इतना ही हो रहा है तो फिर तो these guys did they ask for a refund? You should told them. I don't think so भाई। और I was like अब मैंने कहा मेरे को भी फ्री में मिला है तो मैं क्या करूँ अब। फ्री के पास का रिफंड मांग लिया एम के। हाँ तो नहीं तो बोल देता, जिनने हमें खरीद के किसी ने तो खरीदे कि हमें अंदर तो जाने को मिला नहीं, मैं पैसे दे दो। अबे अभी स्टोरी कंप्लीट कहाँ हुई है। फिर हमने कॉल किया सोनी म्यूजिक वाले को, हमने कहा कि ब्रदर हम लोग फंस गए हैं बाहर और हमें जाना है अंदर, क्योंकि अब हम आए कॉन्सर्ट पे डांस करने। और फिर उसके बाद वो आया बंदा। बिगेस्ट शाउट आउट टू सोनी म्यूजिक। सोनी म्यूजिक इज एब्सोल्युटली गोटेड। दैट मैन देन फाइनली गॉट अस इनसाइड। उसने कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करके मेरे को और केशव को अंदर घुसाया। हम अंदर घुसे और अंदर घुसते ही हमने कहा कि बाहर कहाँ है। पूरी दारू तो उतर गई भैंचोद बाहर बकचोदी करने में। उसके बाद बाहर ढूंढने में लग गए भाई 10-15 मिनट, बाहर मिल ही नहीं रहा। बस हम कह रहे हैं ये बिरयानी काउंटर ये वो ये सब दिख रहा है, बाहर है कहाँ। उसके बाद फाइनली एक फैन अप्रोच मी टू टेक अ पिक्चर विद मी। तो हमने सबसे पहले उसको बोला कि वील टेक अ पिक्चर बट वेयर इज द बार। फिर वो बोला कि इस क्राउड के बीच में से जाओ तब उस साइड बार मिलेगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा फाइन वील टेक अ पिक्चर दैट साइड, फॉलो मी, लेट्स गो टू दैट साइड। तो हम उस साइड गए, आई टुक अ पिक्चर विद हिम। और फिर हम पहुंचे, मैं और केशव पहुंचे बाहर। और सबसे पहले हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमारे दिमाग के पूरे घोड़े खुल गए। 450 रुपए के मैजिक मोमेंट्स। 450 रुपए की मैजिक मोमेंट्स भाई। हम प्रीटी श्योर 450 रुपए में मैजिक मोमेंट्स की पूरी बोतल आती है। हाँ। और 450 बड़ी वाली बोतल भाई पूरी 450 रुपए में 750 ml की आती है पूरी बोतल बहनचोद। और वहां वो साला 30 ml बेच रहे हैं भाई, और 500 रुपए की रेड बुल। वो देखते ही people buying. Obviously, bro, the true hardcore walkers wanted to get lit over there, and they were, I'm assuming, buying only. फिर उसके बाद made around like fucking बार में पूरा रश लगा हुआ था। हाँ they भाई, made probably like 8 or 9K one bottle. That's fucked. That's like That's quite a lot of money. yeah. फिर क्या भाई बहनचोद, हम लोग निठल्लों की तरह वहाँ पे हमने देखा कि निठल्लों की तरह हमने देखा कि बहनचोद ये सीन हो रहा है। मैंने और केशव ने प्रॉपर एक्सचेंज किया लुक, और हमने कहा ये तो देयर इज नो फकिंग वे। और हम उसी सेकंड निकल गए। और फिर हमने कॉल किया मिस्टर AMK को, जिसने चोदी हमारी माँ, क्योंकि AMK हम लिटरली बाहर निकले, वहाँ सैंड स्टॉर्म आ रहा है, क्योंकि हर कॉन्सर्ट, एवरी कॉन्सर्ट इज ऑलवेज होस्टेड एट अ प्लेस जहाँ एक छोटी सी भी घास नहीं उग रही होती। लाइक नॉट, एंड व्हाई आई एम सेइंग इट लाइक दैट इज बिकॉज एक स्ट्रैंड घास का नहीं होता, सिर्फ मिट्टी होती है भाई। दे ऑलवेज फाइंड अ स्पॉट जहाँ एक, मतलब मेरे को ये समझ नहीं, इनके पास इतने मैट्स कैसे होते हैं? मैट्स कहाँ लगे होते हैं? Where you stand for the concert and woo woo like that whole area. How do they have so many fucking chaddars and mats?
They used to host big sleepovers when they were young. इसलिए इतनी चद्दर होती है. सारी घर से लाए चद्दर. भाई फिर बेंचों मिट्टी विट्टी इनहेल करते करते मैं और केशव पहुंचे दूसरी तरफ. मतलब बेसिकली हमने कॉल किया एएमके को, हमने बोला कि भाई रेस्क्यू करने आ, हमारी गांड फट रही है यहाँ पे. और हम कुछ ना कुछ करके पहुंचे एग्जिट तक. और फिर हमने एएमके को कॉल किया, हमने सोचा कि एएमके अब आएगा. 20 मिनट हो गए, 20 मिनट. अरे भाई साहब डरा दिया तूने. सॉरी. 20 मिनट हो गए, 20 मिनट्स. 2 किलोमीटर चल लिए. 2 किलोमीटर चलिए मिट्टी में भाई, पूरा अंदर से सैंडमैन बन गया था भाई मैं. What the fuck. और फिर भी एएमके नहीं आया. अबे यार तुम 10 मिनट हो गए थे जब से तुमने मुझे कॉल करा था. नहीं, लिटरली 10 मिनट्स. मैंने लिटरली केशव तेरे को दिखाया नहीं था फोन पे कि देख अब एग्जैक्टली 20 मिनट्स हो गए, नाउ वी कैन टेक एन ऑटो एंड गो बैक. No, it wasn't 20 minutes. 20 minutes you called me and then I said I'm leaving and then last time you called me was 10 minutes ago. I sent you a screenshot of that shit. Guys, the problem with AMK is I'm looking at the camera and addressing this issue is that AMK is a big liar. I sent you a fuck. I'll put the I sent you a fuck. I will you put the screenshot I sent you on screen right now. I'm editing this video, so I will Not put it. You will put it. Because I know that I know what time it was. Okay, fine. Then put the Fucking, it's a screenshot. Put the lie. screenshot of the chat. Fuck you. Put the screenshot of the chat. You liar, motherfucker, piece of shit. Suck on my small penis. It is small. It is small. It's So is very yours. small. The point is that all of our penises. I'm lying about my small penis. No, That's the only thing I've ever lied about. You know that the reason you're on this podcast is because of the size of your penis, right? My penis. Guys, he's fired. This is the last episode you're seeing AMK on. His penis is actually bigger than the minimum maximum we can have, than the maximum requirement we can have. So this is AMK's first and last episode. And guys, that's the Alan Walker story. How was Alan Walker? As a person? No, the entire day. Right. The entire day. It was okay. Honestly, it was pretty fucking fun because Alan Walker was really humble and RJ Abhinav was a great guy. And we also met RJ Abhinav at the concert, but for 5 seconds because he was leaving when we came. But yeah, overall, Alan Walker was a memorable day, I would say, and a fun time overall. And that is the Alan Walker story, guys. This has been the first episode of the Podstars where we have the biggest mics, the biggest headphones. And 2 small penises. Yeah, because apparently AMK was lying. Make sure to comment, like, subscribe, do everything. Follow us on Instagram at AnmolRaina13, At the Podstars. at Aryaksaxan, Astir Keshav 9, and at the Podstars. Follow us everywhere, guys. We are on Spotify. We are on everything. So wherever you want to listen to us, make sure you follow us there and share the fuck out of this episode. Comment, like, and subscribe. Do everything. Thanks for watching. Love all of you who sat through this whole thing. Blowjobs to everyone. What, 40 minutes? I don't know, however long. Not bad. Anyway, guys, that's the first episode. Thank you for watching. Peace out. Bye.